हमाद ये जो बुक्स हैं ये इकट्ठी करके एक जगह पे रखते हैं सारी। पीछे कहीं किसी चेयर पे रख दें। हाँ जी। बुक्स और रजिस्टर दोनों ही ज़ाहिर रखेंगे। चलें ठीक है, अभी बैठ जाएं। लाइनों में तो आ जाए ना। आप भी उस लाइन में हो जाए। हाँ जी, उस लाइन में। जी, दोनों तरह से है। आप लोग भी इसी तरह करें, एक लाइन ये जो आप वाली चेयर है इसके पीछे बना लें, एक वो आखिरी लाइन में बना लें। जी, आगे रख लें चेयर या पीछे बैठ जाएं। ये दरमियान से आप वाली लाइन जो है वो खत्म कर दें। हाँ जी, बस इसी लाइन में आ जाएं। आप भी ये जो सैयदा हलीमा वाली लाइन है वो आखिर में चले जाएं या मिड में आ जाएं या इस तरफ आ जाएं। हाँ जी, इधर ही बैठ जाएं। सुबह अरबी ग्रामर तो आपने सारी रिवाइज कर ली थी ना। हो गई थी सर सुबह। इल्म तजवीद हमने आगाज कहाँ से किया था? उसकी इल्म तजवीद का आगाज कहाँ से किया था? उसके लुग़वी माना से। तो इल्म तजवीद का लुग़वी माना क्या है? वेल डन। इल्म तजवीद की इस्तिलाही तारीफ भी की थी, क्या तारीफ थी? ऐसे उसूलो जवाबित का इल्म जिसके जरिए हरूफ कुरानिया के मखारिज और सिफात को। फिर हमने इल्म तजवीद का मौजू पढ़ा था, क्या मौजू है इसका? हरूफ कुरानिया। फिर हमने इल्म तजवीद की गर्ज गायत पढ़ी थी, वो क्या थी? सही तलफ़ुज़ के साथ अदा करना। इल्म तजवीद का मरकज़ व महवर क्या है? सब बोलिए ना, इल्म तजवीद का मरकज़ व महवर क्या है? आपको एक खास चीज बताऊं, ऊपर से देख के पढ़ेंगे रिवीजन नहीं होगी। आप वो फिर बंदा ऊपर से देख के पढ़ जाता है, रिवीजन नहीं होती। रिवीजन होती है जुबानी। आप ऊपर से देख के ना पढ़ें, वरना आप लोग रिवाइज सही तरह नहीं कर पाएंगे, फिर परेशान होंगे। तो इल्म तजवीद का मरकज़ व महवर क्या है? मीम साकिन। फिर इल्म तजवीद के लिए कुरानी हुक्म क्या है?
ترتیلا ورتل القرآن ترتیلا. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ حروف تہجی کو پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ کتنے طریقے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ معروف اور معروف طریقہ کون سا ہوتا ہے؟ اور مجہول کون سا ہوتا ہے؟ پھر الف اور حمزہ کا فرق پڑا. الف اور حمزہ میں پہلا فرق کیا ہے؟ الف ہمیشہ اور حمزہ پر حرکت. پھر الف کو ہمیشہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اور حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. پھر ہم نے مخرج معلوم کرنے کا طریقہ پڑھا. کیا طریقہ ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو پہلے اسے ساکن کریں گے اور ما قبل حمزہ. ما قبل کون سا حمزہ لگائے؟ حمزہ کون سا حمزہ؟ مفتوحا. کون سا حمزہ لگائے؟ حمزہ مفتوحا. پھر ہم نے یہ پڑھا اس میں علم و تجوید میں کہ اس میں کچھ قواعد ہوتے ہیں نون ساکن اور نون تنوین کے اور میم ساکن کے. تو نون ساکن اور نون تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ ایک ساتھ بولیے نا. کون کون سے ہیں؟ اظہار، اخفاء، اکلاب. ایک بار پھر کون سے ہیں؟ اظہار، اخفاء، اکلاب. اظہار کا معنی، اخفاء کا معنی، اکلاب کا معنی، ادغام کا معنی. کیا کرنا؟ ضم کر دینا. اظہار کا قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد. یہ کیا کر رہے ہیں؟ آگے پیچھے کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک ساتھ پڑھیں نا. اظہار کا قاعدہ کیا ہے؟ اگر ایک بار پھر بولے. اظہار کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن یا بعد. حروف اظہار کتنے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ پھر ہم نے اخفاء پڑھا. اخفاء کا قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن یا کے تو حروف اخفاء کتنے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ تا، سا، جیم، زا، سین. ایک بار پھر. تا، سا، جیم. ایک بار پھر پڑھ دیں. تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف. پھر ہم نے اقلاب کا قاعدہ پڑھا. کیا قاعدہ ہے اقلاب کا؟ نون ساکن یا بعد. ایک بار سارے مل کر بولے نا. کیا قاعدہ ہے؟ نون ساکن یا کیا ہوگا؟ اقلاب ہوگا. اچھا جی. اس کے بعد حرف اقلاب کتنے ہیں؟ کون سا ہے؟ با. پھر ہم نے ادغام پڑھا. ادغام کا قاعدہ یاد ہے؟ کیا قاعدہ ہے؟ بولیے نا. نون ساکن یا حروف ادغام کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ ان کا مجموعہ کیا ہے؟ یار معلوم. حروف ادغام کا مجموعہ کیا ہے؟ یار معلوم.
پھر ہم نے ادغام بالغنہ اور بلا غنہ بھی پڑھا. ادغام بالغنہ کتنے حروف پر ہوتا ہے؟ مجموعہ کیا ان کا؟ کیا نا مجموعہ ہے؟ ویمن یا نومی. اور حروف وہ ادغام بلا غنہ کتنے حروف پر ہوتا ہے؟ وہ دو کون سے ہیں؟ لام اور را. مجموعہ کیا ہے؟ رل. مجموعہ کیا ہے اس کا؟ پھر ہم نے میم ساکن کے قاعدے پڑھے. کتنے قاعدے تھے؟ کون کون سے تھے؟ اخفاء شفوی. ایک بار پھر. ادغام شفوی، اخفاء شفوی، شفوی. ادغام شفوی کا قاعدہ کیا ہے؟ ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو کیا ہونا ہے؟ میم ساکن. ادغام شفوی ہوگا. تو آئیے نا ایک ساتھ بولتے ہیں ادغام شفوی کا قاعدہ. مل کر بولتے ہیں. کیا قاعدہ ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے تو میم ساکن پر. ایک بار پھر بولیے کیا قاعدہ ہے؟ میم. یہ اگر ہے ہماری تعریف میں؟ اگر ہے ہماری تعریف کے اندر کہ نہیں؟ میرے خیال ہے نہیں ہے. کہ ہے لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا ہے تو پھر آگے پیچھے کیوں رہے؟ ایک ساتھ بولتے ہیں. کیا تعریف ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے تو میم ساکن پر اخفاء شفوی کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد. سلام صاحب آپ بول نہیں رہے، سوچ رہے ہیں کچھ. کیا سوچ رہے ہیں؟ یاد نہیں ہے یہ چیز تعریفیں؟ بھول گئے تھے. آئیے نا پھر مل کر بولتے ہیں. کیا تعریف ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو میم ساکن پر اخفاء. ایک بار پھر بول لیتے. کیا تعریف ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو میم ساکن پر. پھر آخری تعریف تھی اس میں میم ساکن کی قواعد میں. وہ کیا تھی؟ اظہار شفوی. کیا تھا وہ؟ کیا ہوتا ہے اظہار شفوی؟ میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو میم ساکن پر. ایک بار پھر بولتے. کیا تعریف ہے؟ میم ساکن کے بعد ویل ڈن. میم ساکن کے قواعد بھی ہو گئے. پھر ہم نے مخارج بھی پڑھے ہوئے ہیں نا. اصول مخارج کتنے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ جوف دہن. دانتوں کی اقسام بھی پڑھی ہیں. کتنی ہیں؟ کون کون سی ہیں؟ ان کی ڈیٹیل بھی پتا ہے. سنایا کون سے ہوتے ہیں بلا؟ سامنے کے اوپر نیچے دو دو کل چار دانت. ربائی کیا ہوتے ہیں؟ سنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل چار دانت ربائی کہلاتے. ربائی کے بعد انیاب کیا ہوتے ہیں؟ ربائی کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل چار دانت. انیاب کے بعد دواہی کیا ہوتے ہیں؟ انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل چار داڑیں کیا کہلاتی ہیں؟ دواہک کے بعد کیا ہے؟ تواہن. تو تواہن کیا ہوتا ہے؟ تواہک کے دائیں بائیں اوپر نیچے کتنے؟ تین تین. کتنے؟ تین تین. یہ صرف تواہن جو پیسنے والے ہیں یہ صرف 12 ہیں. تواہن 12 کون سے؟ پیسنے والے. کیونکہ ان کا استعمال سب سے زیادہ ہے. جب بھی کھانا ہے تو ورکنگ ان کی ہوتی ہے، پیسنا انہوں نے ہوتا ہے، اس لیے یہ زیادہ ہیں. یہ 12 ہیں.
तो तीन तीन, दाएं बाएं ऊपर नीचे, कितने हो गए? 12। आखिरी किस्म क्या है? नवाजिज क्या, कौन सी दाढ़ें होती हैं? तवाहिन के दाएं बाएं ऊपर नीचे, एक एक, कुल 4 दाढ़ें क्या कहलाती हैं? फिर हमने मखारिज भी पढ़े ना, मखारिज, हरूफ हल्की के मखारिज पहले पढ़े, हलक के, हलक से कितने मखरज थे? कौन कौन से थे? अक्सा हलक, वस्ते हलक, कोई किसी की आवाज वस्ते भी आ रही है, वस्त कोई शय नहीं होती है, वस्ते हलक क्या है? वस्ते हलक। और अक्सा का माना दूर होना, और अदना का माना करीब होना। तो अक्से हलक से कौन से हरूफ अदा होते हैं? और अदना हलक से कौन से अदा होते हैं? कौन से अदा होते हैं? गईन खा। कौन से अदा होते हैं, बोलिए? गईन खा। फिर अक्सा हलक से कौन से अदा होते हैं? वस्ते हलक से, अदना हलक से। फिर हमने लिसान पढ़ा। क्या पढ़ा? लिसान। लिसान के 4 हिस्से किए हुए थे, उसकी जड़ थी, उसका वस्त था, उसकी तरफ थी, और उसकी नोक थी। तो जड़ से 2 हरूफ के मखरज थे। कितने हरूफ के? वो 2 हरूफ कौन से हैं? काफ का मखरज क्या है? जुबान की जड़। और काफ का मखरज क्या है? के मखरज से थोड़ा मुंह की जानिब हटकर जुबान जब तालु का, जुबान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा। इसके बाद है वस्त। वस्ते लिसान से कौन से हरूफ अदा होते हैं? कौन से हरूफ अदा होते हैं? हुरूफ शजरिया कितने हैं? हुरूफ शजरिया कितने हैं? कौन कौन से हैं? जीम शीन या, जीम शीन या, जीम शीन। हुरूफ शजरिया कितने हैं? कौन कौन से हैं? जीम शीन। ये कहां से अदा होते हैं? वस्ते जुबान और, वस्ते जुबान और ऊपर का तालु। वस्ते जुबान से ये मखरज था हरूफ शजरिया का। फिर है तरफ। हरूफ तरफिया कितने हैं? कितने हैं? कौन कौन से हैं? तौद लाम नून रा। तौद लाम, तौद लाम नून। दौद का मखरज क्या है? तरफे जुबान और, तरफे जुबान और अदराज के। लाम का मखरज क्या है? तरफे जुबान और सराया, रुबाई, अनियाब और दवाही के। लाम के बाद क्या है? नून का मखरज क्या है? तरफे जुबान और सनाया, रुबाई, अनियाब के। 3 किस्में रह गई, और आखिरी है रा। रा में 2 किस्में रह जाएंगी दांतों की। रा का मखरज क्या है? तरफे जुबान और सनाया, रुबाई के। तरफिया भी हो गए। नो के जुबान, नो के जुबान से 3 3 हरूफ के 3 मजमुए हैं, 3 मखरज हैं। पहला हो रहा है हरूफ नितइया, दूसरा है हरूफ लिसविया, तीसरा है हरूफ सफीरिया। फिर बोलिए, हरूफ नितइया, हरूफ लिसविया, हरूफ सफीरिया। एक बार फिर, हरूफ नितइया, हरूफ लिसविया, हरूफ सफीरिया। हरूफ नितइया कितने हैं? कौन कौन से हैं? हरूफ नितइया कहाँ से अदा होते हैं? नो के जुबान और सनाया उलिया की। हरूफ नितइया कहाँ से अदा होते हैं? नो के जुबान और सनाया उलिया की जड़। और हरूफ लिस्विया कहाँ से अदा होते हैं? नो के जुबान और सनाया उलिया का किनारा। एक बार फिर, हरूफ लिस्विया कितने हैं? कौन से हैं? सा, जाल, जो। सा, जाल कहां से अदा होते हैं? नो के जुबान और सनाया उलिया का किनारा। फिर तीसरा ग्रुप है 3 हरूफ का, वो है हरूफ सफीरिया। हरूफ सफीरिया कौन से हरूफ होते हैं? फिर बोलिए ना।
जा सीन साद, जा सीन साद, जा सीन साद कहां से अदा होते हैं? नोके जुबान और सुनाया उलिया और सुफला दोनों का क्लियर है। लिसान हो गई, मखरज भी हमारे चार रह गए हैं, और अब है आखिरी हलक। लिसान के बाद आता है शफातैन। शफातैन, शफातैन से हमने कहा दो मखरज बनते हैं। एक बा मीम वाव का मखरज है, और वो क्या है? बा क्या है, कहाँ से अदा होती है? दोनों होंठों के, मीम दोनों होंठों के, वाव दोनों होंठों को, और फिर है फा। फा भी शफातैन से अदा होता है, तो फा का मखरज क्या है? सनाया उलिया का किनारा और नीचे वाले होंठ का। फिर बोलिए ना, सनाया उलिया का किनारा और नीचे वाले होंठ का। यहां से क्या अदा होता है? वाह, वाह, वाह। ये यहां से अदा, वाह। फिर है शफतैन भी हो गए। शफतैन के बाद है जोफे दहन और खैशूम। इन दोनों का एक एक मखरज है। जोफे दहन का भी एक है, खैशूम का भी एक है। जोफे दहन से कौन से हरूफ अदा होते हैं? हुरूफे मद्दा। जोफे दहन से कौन से हरूफ अदा होते हैं? हुरूफे, हुरूफे मद्दा कितने हैं? कौन कौन से हैं? वाओ अलीफ। ये कहां से अदा होते हैं? जोफे जहन दहन से, जोफे दहन से। फिर रह गए खैशूम। खैशूम, खैशूम किसका मखरज है? गुन्ना और इख्फा का। खैशूम किसका मखरज है? गुन्ना का भी और इख्फा का भी। तो मखरज पूरे हो गए, 17 मखारिज पूरे हो गए। अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके लिए मसला नहीं होगा। फिर मद्दात भी पढ़ी हमने, हुरूफ मद्दा पता है। अच्छा, वाओ कब मद होती है? वाओ मद्दा कब होती है? जब वाओ साकिन हो और उसका मा कबल, उसका मा कबल मदमूम हो। और अलिफ कब मद होता है? जब अलिफ का मा कबल फतहा हो। और या कब मद होती है? जब या का मा कबल कसरा हो या मकसूर हो। ये तीन हो गए। फिर हमने हरूफ लीन पढ़े। हरूफ लीन कितने हैं? कौन कौन से हैं? ये कब लीन होते हैं? जब ये साकिन हो और इन दोनों का मा कबल। सब बोलिएगा, हरूफ लीन कितने हैं? कौन कौन से हैं? ये कब लीन होते हैं? जब ये साकिन हो और इनका मा कबल मफ्तू हो, फतहा आया हुआ हो, तो ये लीन हो जाते हैं। फिर हमने मद की अकसाम पढ़ी, पढ़ी थी। मद की किस्में पढ़ी थी। मद का लुग़वी माना तो पढ़ा है ना हमने। मद का लुग़वी माना क्या है? तूल देना, खींचना। और मद की इस्तिलाही तारीफ पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? नहीं पढ़ी थी। इस्तिलाही तारीफ भी समझ लें कि सिंपल है कि हुरूफ कुरानिया को खींच कर पढ़ना। हुरूफ कुरानिया को खींच कर पढ़ना। अच्छा जी, आगे मद की अकसाम हमने पढ़ी, पढ़ी थी। मद की कितनी किस्में हैं? दो। कौन कौन सी? मद्दे असली और मद्दे, मद्दे असली कौन सी मद होती है? ऐसी मद जो किसी सबब की मोहताज। और मद्दे फरही कौन सी मद होती है? ऐसी मद जो किसी सबब की मोहताज हो। असली मोहताज ना हो और फरही मोहताज। फिर मद्दे असली की कितनी किस्में पढ़ी? कोई किस्म नहीं है। और मद्दे फरही की कितनी पढ़ी? मद्दे फरही की कितनी किस्में पढ़ी? याद है? आइए ना पढ़ते हैं। चार कौन सी हैं? मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे आरिज। मद्दे, मद्दे मुत्तसिल कौन सी मद होती है? अच्छा, सबब मद कितने हैं? तीन। कौन कौन से हैं? फिर बोलिए। हमजा, शद, हमजा जज्म और शद।
تو शब्बे मद हमजा जो है वो मद्दे मुत्तसिल में भी आता है और मद्दे मुनफसिल में। तो मद्दे मुत्तसिल फिर कौन सी मद होती है? ऐसी मद हमजा उसी कलमा में हो। फिर बोलिएगा, ऐसी मद जिसमें हर मद हमजा और मद्दे मुनफसिल कौन सी होती है? ऐसी मद जिसमें सबबे मद हमजा अगले कलमा में आ जाए, उसको क्या कहते हैं? मद्दे मुनफसिल। फिर दो किस्में होगी, अगली दो कौन सी हैं? मद्दे आरिज, मद्दे लाजिम। मद्दे आरिज कौन सी मद होती है? ऐसी मद जिसमें सुकूने, फिर बोलिए ना, ऐसी मद जिसमें सुकूने, और मद्दे लाजिम कौन सी होती है? सुकूने लाजिम असली हो, लाजमी बमाना असली हो। फिर मद्दे लाजिम की भी आगे चार किस्में थी, वो कौन सी थी? मद्दे लाजिम कलमी मुखफ़फ़, मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल, मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़, मद्दे लाजिम हरफी। ये भी हमने चारों पढ़ी थी। यानी मद्दे लाजिम कलमी कलमा में होगी और हरफी हरूफे मुकत्तआत में होगी। मुसक्कल वो होगी जिसमें हरफे मद के बाद सबबे मद अस्सलाम हमजा वालेकुम सर। शद होगा। अस्सलाम जी वालेकुम सर। जी जी। सर, सर ये मद्दे लाज़िम की जो इकसाम आपने बताई है इनको रिपीट कर दिए जी क्या? जी कर रहे हैं हम रिपीट। मद्दे लाजिम की कितनी किस्में पढ़ी हमने? कौन कौन सी थी? मद्दे लाजिम कलमी मुखफ़फ़, मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल, मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़, मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल। अब ये चार, कलमी हम उसको कह रहे हैं जो कलिमा में हो, और हरफी उसको कह रहे हैं जो हरूफे मुकत्तआत में हो। मुसक्कल उसको कह रहे हैं कि अगर हरफ मद के बाद सबबे मद हमजा शद हो, और मुखफ़फ़ उसको कह रहे हैं जिसमें हरफ मद के बाद सबबे मद हमजा जज्म हो। क्या हो? शद होगी तो मुसक्कल, और जज्म होगी तो मुखफ़फ़। कलिमा में होगी तो कलमी, हरूफ मुकत्तआत में होगी तो हरफी। बस ये इतना सा फर्क है। कलमी किसको कहेंगे? जो कलिमा में होगी। मुसक्कल किसको कहेंगे? जहां हरफ मद शद होगा। हरफी किसको कहेंगे? जो हरूफ मुकत्तात में होगी, जैसे अलिफ लाम मीम, या काफ या स्वाद या काफ हा या आइन स्वाद, ये जितने यासीन, ठीक है, इन सारी सूरतों के नाम हैं। ये स्वाद भी है, काफ भी है, तो ये हरूफ मुकत्तात हैं। जब इनमें मद होगी तो उसको मद लाजिम हरफी कहेंगे, और अगर शद आएगा सबब मद तो मुसक्कल कहेंगे, और अगर जज्म आएगा तो उसको क्या कहेंगे? मुखफ़फ़ कहेंगे। फिर हमने इसके बाद छोटी छोटी चीजें, हरूफे कलकला भी पढ़े हमने। कलकला का माना क्या है? लफ्जी माना क्या है? जुम्बश। वैसे हमने तारीफ क्या लिखी? आवाज का अपने मखरज से लग कर टकरा कर जुम्बशे वापस आना, लग कर टकरा कर वापस आना। हरूफे कलकला कितने हैं? मजमुआ क्या है इनका? कुतुबु जद्दिन। ये भी हमने पढ़ा। हमने हरूफ मुस्तालिया भी पढ़े, सिफात में भी जाके कल पढ़े थे। हरूफ मुस्तालिया, हरूफ मुस्तालिया कितने हैं? कौन कौन से हैं? फिर बोलिए ना, खुस्सा दाग तीन। फिर बोलिए, खुस्सा दाग तीन। अब ये चीजें अगर पेपर में आ जाएं, आपको लिखने में परेशानी होगी भी। हरूफ मुस्तालिया छह हैं, पांच हैं, या चार हैं? हरूफ कलकला दो हैं या तीन हैं? कोई परेशानी होगी? नहीं होगी। फिर हमने, अच्छा जी, फिर हमने इसके बाद सिफात पढ़ी थी। एक दफा 5 मिनट में सिफात से भी गुजर जाते हैं, तो फिर पेपर शुरू करते हैं। सिफात, लहन का बयान भी पढ़ा था हमने। लहन की कितनी किस्में हैं? कौन कौन सी हैं? लहने जली और लहने
लहन जली कौन सी गलती होती है और खफी कौन सी होती है? लहन का माना क्या है? वैसे माना है लुगवी मान, लफ्जी माना है लब व लहजा, मगर हम यहाँ क्या मुराद लेते हैं? गलती। फिर लहने जली कितनी सूरतों में होती है? कितनी सूरतों में? याद है वो चार सूरतें? कौन कौन सी? पहली सूरत क्या है? हर्फ का, हर्फ से। दूसरी सूरत क्या है? हरकत को, हरकत से। तीसरी सूरत क्या है? इजाफा या। और चौथी सूरत क्या है? मुतहर्रक को साकिन या साकिन को। फिर हमने लहन खफी भी पढ़ी थी, उसकी एक जुमले में लिखा था कि किसी हर्फ की सिफात आरिजा को के बगैर पढ़ना। लाजिमा तो छोड़ नहीं सकते, आरिजा छूट गई तो उसको क्या कहेंगे? लहन खफी। जो सिफातें लाजिमा है उनको तर्क नहीं कर सकते, वो लाजिम होती हैं। फिर इनका लहन जली का हुक्म क्या है? हो सकता है अदनान भाई का ये लुकमा ही काम आ जाए आपके, ये छोटी सी बात। लहन जली का हुक्म क्या है? हराम है। और मेरा लहन खफी का हुक्म हराम क्या है। है? मकरूह है। जली हराम है और खफी। इसलिए मैंने आज कहा कि जब कुरान मजीद पढ़े तो लहन जली किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हराम है, उससे तो गुनाहगार होता है बंदा। खफी हो जाए तो वो नापसंदीदा है, वो होनी वो भी नहीं चाहिए, मगर हो जाए तो गुनाह नहीं होता। फिर हमने सिफात पढ़ी थी रात को। सिफात, कितनी किस्में हैं सिफात की? कितनी किस्में हैं? कौन कौन सी हैं? नज़ायर हरूफ मद्दा भी पढ़े हैं? याद है या भूल गए? नज़ायर हरूफ मद्दा कितने हैं? इनके नाम हमने याद किए थे। नज़ायर हरूफ मद्दा कितने हैं? बोलिए ना, कितने हैं? कौन कौन से हैं? वाओ अल मद्दिया अस्सगीरा, या अलिफ अल मद्दिया अस्सगीरा, या अल मद्दिया। यानी वाव मद की जगह पर आया था नज़ायर हरूफ मद्दा में। नज़ीर का माना मिसाल, और नज़ायर उसकी जमा, जैसे बेनज़ीर। तो नज़ीर से नज़ायर बना। नज़ायर हरूफ मद्दा का मतलब है हरूफ मद्दा की तरह, हरूफ मद्दा के जैसे। तो वाव मद की जगह क्या आता है? वाव अल मद्दिया। और अलिफ मद की जगह क्या आता है? बोलिए ना, अलिफ मद की जगह क्या आता है? और या मद की जगह क्या आता है? वाव मद की जगह क्या आता है? अलिफ मद की जगह क्या आता है? और या मद की जगह क्या आता है? मद से अल मद्दिया हो गया और असगीरा हो गया, यानी छोटी मद। असगीरा क्या हो गया? इसको छोटी मद कहा। हरूफ शमसिया कमरिया भी हमने पढ़े, लामे कमरिया, लामे शमसिया। हरूफ कमरिया का मजमुआ याद किया था, क्या था वो? इबगी हज का वखफ। याद नहीं है मजमुआ? हरूफ कमरिया का मजमुआ क्या था? इबगी हज का वखफ अकीमा। इबगी हज का, इबगी हज का। चार पांच दफा बोलिए, सारे बोलिए, क्या है मजमुआ? आगे पीछे क्यों हो गए? एक साथ बोले ना, क्या मजमुआ है? याद है सबको? नहीं की आवाज भी आ रही? नहीं किसने बोला है? क्या मजमुआ? अब अगर नहीं याद था तो अभी हो गया होगा, अभी तो बोला है ना। क्या मजमुआ है? अगर नहीं याद तो तीन दफा सारे ही बोले, बोलते हैं। इबगी हज्जा का वखफ अकीमा। इबगी। ये मुझे लगता है एक दिन आपने क्लास मिस की थी, तो उस दिन ये गुजरा था, आपने नहीं पढ़ा होगा ये। हाँ, तो ये मिस था। और यहाँ जब नहीं की आवाज आई थी, यहाँ भी बीमारी ने कुछ क्लासेस मिस करवाई थी, तो वो इस वजह से यहाँ भी नहीं हुआ। वरना ये मजमुआ भी हमने।
क्या मजमुआ? हाँ वो तो हमने लिखा था, लिखा भी था, पढ़ा भी था, याद भी किया था। क्या था वो? ये इसका तर्जुमा नहीं है, ये इसका तर्जुमा नहीं है, कहीं तर्जुमा कह के फंस ना जाना। ये भी मजमुआ ही है, ये उर्दू में मजमुआ है। हक का खौफ, यानी एक मजमुआ है इबगी हज्जा का वक़ाफ हकीमा, और एक उर्दू का मजमुआ हमने याद किया था, हक का खौफ अजब गम है। चलें सिफात पे आ जाए, टाइम कम रह जाएगा पेपर का। सिफात पढ़ी, सिफात की कितनी किस्में पढ़ी थी? कितनी किस बंद कर दे रजिस्टर, ऊपर से नहीं देखना किसी ने भी, आपकी रिवीजन वरना नहीं होगी। सिफात कितनी पढ़ी थी? कौन कौन सी सिफात? लाजिमा सिफात, बोलिए ना कौन सी सिफात थी? सिफात लाजिमा की कितनी किस्में हैं? एक भी नहीं है। सिफात लाजिमा की कितनी किस्में हैं? कौन कौन सी? सिफात ज्यादा, एक साथ बोलते हैं, सिफात लाजिमा की कितनी किस्में हैं? कौन कौन सी हैं? सब नहीं बोल रहे, कुछ लोग तो चुप बैठे हैं, आवाज बहुत कम आ रही है। सिफात लाजिमा की कितनी किस्में हैं? कौन कौन सी हैं? सिफात मुतजादा और सिफात, और सिफात आरजा की किस्में थी या नहीं थी? नहीं थी। सिफात मुतजादा कौन सी होती हैं? ऐसी सिफात जिनकी कोई जिद हो, जिद में यानी उलट भी हो। और सिफात गैर मुतजादा ऐसी सिफात जिनकी कोई जिद ना हो। तो सिफात मुतजादा कितनी थी? कितनी है? 10। कौन कौन सी? आइए पढ़ लेते हैं मिलकर। हम सुन, जाहरुन, शिद्दत, रिखवत, इस्तेला, इस्तेफाल, इत्तेबाक, इनफिता, इजलाक। आपने फिर रजिस्टर खोला हुआ है, बंद कर लें, मेरी तरफ देख के फिर पढ़ें। हाथ हाथ पे लिखा हुआ है कुछ, एक साथ पढ़ते हैं जी। 10 सिफात कौन सी हैं? हम सुन, जाहरुन, शिद्दत, रिखवत, इस्तेला, इस्तेफाल, इत्तेबाक, इनफिता, इजलाक। हम सुन का माना, जहरुन का माना, शिद्दत का माना, रिखवत का माना, इस्तेला का माना, इस्तेफाल का माना, इत्तेबाक का माना लिपटना। और इसका उलट क्या था? इनफिता, इनफिता का माना खुलना, इजलाक का माना फिसलना, और इस्मात का माना। इसी तरह फिर हरूफ महमूसा का मजमुआ याद किया था रात को, याद किया था हमने, क्या था? फहस्सहु शख्सुन, क्या मजमुआ था? फहस्सहु शख्सुन सकत, फहस्सहु शख्सुन सकत, फहस्सहु शख्सुन। फिर हरूफ महमूसा का उलट दूसरे थे मजहूरा, और उसके बाद था शिद्दत, हरूफ शदीदा भी पढ़े थे। हरूफ शदीदा क्या था मजमुआ? ये अर्थ दे रहा है आज माइक, 2-3 बार मुझे अर्थ लगा। क्या था मजमुआ इसका? आजिदु कत्तिम बकत, आजिदु कत्तिम बकत, आजिदु कत्तिम। फिर शिद्दत और रिखवत के दरमियान कुछ था, तवस्सुत जिसको कह रहे, उसका मजमुआ था लिन उमर, वो 5 हरूफ। इन 5 के अलावा और आजिदु कत्तिम बकत के अलावा बाकी सारे हरूफ रिखवा हैं, नरमी से पढ़े जाने वाले। फिर हमने हरूफ इस्तेला, हरूफ मुस्तालिया, हरूफ मुस्तालिया कितने हैं? कौन कौन से हैं? इसके अलावा जो है वो इसका उलट है। फिर हरूफ मुतबिका पढ़े थे, कौन से थे? صاد ضاد طاء ظا، صاد ضاد طاء ظا، صاد ضاد، اور आखिर में था, सबसे आखिर में फिर इसका उलट जो था वो इसके, ये इसके अलावा जो हरूफ थे वो इसका उलट था। आखिरी थी फिर हरूफ मुजलिका, वो कौन से थे? किसको याद आया?
بلال کے لیے کلیپنگ کر دیں پھر ایک دفعہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلال پورے ہوش و حواس میں ہے. مجموعہ کیا تھا اس کا؟ فر مل لبن. یہ ساری ہماری صفات متضادہ ہو گئی تھیں. پھر اس کے بعد صفات غیر متضادہ پڑیں. وہ کتنی تھیں؟ 8. کون سی تھی بلا؟ ایک ساتھ پڑھتے ہیں. جی کیا مجموعہ ہے؟ سفیر، کلکلا، غنہ، تفشی، استطالت، لین، انحراف. ایک ساتھ بولتے ہیں. 2 لائنوں میں لکھا تھا شعر کی شکل میں. کیا تھا؟ سفیر، کلکلا، غنہ، تفشی، استطالت، لین، انحراف. آپ بول نہیں رہے، یاد نہیں ہوگا، آپ بولیں گے نہیں تو. کیا ہے مجموعہ؟ سفیر، کلکلا، غنہ، تفشی، استطالت، لین، انحراف، تقریر. سفیر، کلکلا، غنہ، تفشی، استطالت، لین، انحراف. ان سب کے معنی بڑے آسان ہیں، حروف آسان ہے. سفیر کا معنی سیٹی، حروف سفیریہ آپ نے ابھی پڑھے. پھر کلکلا کا معنی جنبش، کلکلا آپ نے ابھی پڑھے. پھر سفیر کے بعد غنہ، غنہ کا معنی گنگنانا، حروف آپ نے ابھی پڑھے. غنہ کے بعد تفشی، تفشی کا معنی کیا ہے؟ پھیلنا. اور وہ ایک حرف ہے، اور وہ کون سا ہے؟ شین. پھر اس کے بعد ایک لائن کے پورے ہو گئے 4. اگلے 4 میں کون سے تھے؟ استطالت. استطالت کا معنی کیا تھا؟ دراز ہونا، طول ہونا. اور یہ کس حرف میں یہ صفت پائی جاتی ہے؟ ضاد کے اندر پائی جاتی ہے. استطالت کے بعد کیا ہے؟ استطالت. لین، لین کا معنی نرمی، نرمی. کن حروف میں پائی جاتی ہے وہ آپ کو پتا ہے؟ حروف لین. لین کے بعد انحراف، منحرف ہو جانا. اراکین منحرف ہو گئے فلاں جماعت کے، لوٹ گئے تو منحرف، انحراف ہو جانا، پلٹنا. یہ 2 حروف میں صفت پائی جاتی ہے، لام اور آخری ہے تقریر. تقریر کا معنی ہے کپ کپاہٹ، اور یہ پائی جاتی ہے را کے. چلیں جی بسم اللہ کریں، کتابیں سمیٹ لیں اور پیپر اپنے سیدھے کر لیں. سر، سر جی. جی جی بولیے. سر آن لائن والوں کا پیپر کیسے ہوگا؟ آپ لوگوں کے مزے ہیں، آپ لوگوں کے مزے ہیں. آپ ان کو دیکھیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. پیپر آپ لوگوں کا نہیں ہوگا. وہ دیکھ لیں گے بعد میں، اگر اس کا کوئی آن لائن کا ہوا، وہ صرف جائزہ پیپر ہوا تو وہ کر لیں گے، ورنہ پھر. تو سر ہمارے نمبر کیسے لگیں گے سرٹیفکیٹ پہ؟ آپ بے فکر ہیں، سرٹیفکیٹ بھی بنے گا، وہ ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ان کے نمبر لگانے کے چکر میں نہیں کر رہے، ان سے ان کو پختہ کروانے کے لیے پیپر لے رہے ہیں. نمبر تو آنا ہی ہے اس میں سے. سر میں نے بھی آج سارا جو تیار کیا ہوا ہے. جی، سر میں نے سارا تیار کیا ہوا ہے پیپر. تو ابھی آپ کا پیپر لیں کیسے یہ آپ بتا دیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی حل ہے تو آپ سے بھی لے لیتے ہیں. کیا ذہن میں حل ہے آپ کے؟ وہ تو اوپر سے دیکھ کے بھی لکھ لیں. پیپر آپ لوگوں کو بھی بھیج دیتے ہیں گروپ میں، آپ اس کو دیکھ لیں. اگر آپ لوگ حل کرنا چاہیں تو کر لیں. آپ لوگوں کو پیپر گروپ میں بھیج دیتے ہیں. برابر کریں جی. امتیاز صاحب آپ بھی کہیں آگے، آپ امتیاز صاحب کو جگہ دے دیں، آپ کہیں پیچھے چلے جائیں. حنیف صاحب کو بھی جگہ دے دیں یہاں پچھلی لائن میں. آپ دے دیں شاہ صاحب، آپ یہاں حنیف صاحب کو جگہ دے دیں. ٹھیک ہے، نکال لیں نکال.
चले, बैठ नहीं रहे आप लोग? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, कोई बात बात में भी शोर फील होता है, ऐसे लगता है जैसे गपशप हो रही है। बिल आखिर वो वक्त आ गया है। ये कोई पेपर निकाल दे अपने रजिस्टर में से उनको भी। एक्स्ट्रा है, आपको जरूरत पड़ सकती है, रखें पास। अच्छा, ये जो पेपर है ना, ये दो पेपर हैं, एक है इसका सब्जेक्टिव और एक है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक तो आपने उसी के ऊपर हल करना है, ऑब्जेक्टिव, और जो सब्जेक्टिव है उसके लिए फिर आप शीट इस्तेमाल कर लें। मुताहिर ये लें। कुछ उस तरफ बाजू को पकड़ा दें, वो तकसीम कर लेती हैं। कुछ आप इधर दे दें। जो ऑनलाइन अहबाब शरीक हैं, ये पेपर ग्रुप्स में आ गया है, दोनों मेल और फीमेल दोनों ग्रुप्स में।
ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। तो आप इसको देख लें पेपर को, इसको हल करके आप उसकी पिक्चर्स बना के आप जो है ना वो फॉरवर्ड कर दें, भेज दें इसकी पिक्चर्स बना के, और ईमानदाराना तरीके से इसको हल करें। आप ऊपर से देख भी लेंगे तो आपको देखने वाला तो कोई नहीं है अल्लाह के सिवा, मगर आप इसको कोशिश करें कि अपना जो याददाश्त है उसके मुताबिक इसको हल करें। अल्लाह और उसके रसूल की आंखें तो देख रही हैं, लेकिन जो 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 अहबाब यहाँ तशरीफ फरमा हैं इनको हमारी आंखें भी देख रही हैं, कैमरे की आंख भी देख रही है, जमीर की आंख अपनी भी देख रही है। तो इंशाअल्लाह उल अजीज उम्मीद है कि खैर ही निकलेगी इंशाअल्लाह। इसको बिल्कुल इजी रह के करें, ये बेसिकली ये आपका अपना जायजा है कि हमें ये चीजें कितनी याद हो गई, आपको खुद अभी पता चल जाएगा।
ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, क्या हो गया? ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, आपने इनको शॉर्ट ही करना है, इनको इस पे टाइम जाया नहीं करना। ये दो दो नंबर के हैं, ये ऊपर वाले जो हैं, 10 सवालात। मिसाल के तौर पे लिखा है जी, कलिमा की कितनी और कौन सी किस्में हैं, तो बस किस्में बतानी है, नाम लिख देना, आगे उनकी तारीफें लिखने नहीं बैठना। वो फिर लंबा सवाल हो जाएगा। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसको बिल्कुल मुख्तसर जवाब देते हैं। फिर लिखा हुआ है नज़ारे हरूफ मद्दा के नाम लिखें, तो जस्ट नाम लिखें, उनकी तारीफें वगैरह कुछ भी नहीं लिखना आप। ऑनलाइन वाले कह रहे हैं जी पेपर इज टू मच इजी, उनको ज्यादा आसान लग रहा है पेपर। अच्छा, सवाल आप लोगों ने पूछा है कि क्या हम लोगों ने पीडीएफ में हल करना है? नहीं, आप इसको हाथ से लिखें किसी भी पेपर के ऊपर, हाथ से हल करके, और आप उसकी पिक्चर्स बना के सेंड कर दें बस। आप लोगों ने कोई पीडीएफ, कोई कंपोजिंग उस चक्कर में नहीं पड़ना।
फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, मद की लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ और मद मद फ़रई की अक़साम, या अपने मद फ़रई की सिर्फ अक़साम लिखनी है। उससे आगे जो है ना वो मद लाजिम की किस्में वो नहीं लिखनी, वो नहीं पूछी इसमें। इसमें सिर्फ मद फ़रई की अक़साम पूछी। वो जो कलमी मुसक्कल वगैरह है वो इस सवाल में नहीं पूछा गया। सवाल नंबर 10 में दांतों। हाँ जी, वो सारी किस्में आएंगी। मुतलकन वो सारे दांत ही होते हैं। नहीं, सिर्फ दांतों की अकसाम के नाम लिखने हैं बस। आगे वो क्या क्या है वो वजाहत में ना जाएं। हरफ जारा को हर्फ में लिखें, लेकिन हरफ जारा जिस लफ्ज के साथ जुड़ा होता है वो आपको पता है वो इसम होता है, क्योंकि अलामत इसम में आपने पढ़ी है जिसके शुरू में हरफ जारा हो। तो उस लफ्ज को आप फिर इसम में लिखेंगे जिसके साथ हरफ जार लगा हुआ है। वो अलग अलग कर लेंगे। हर्फ को हर्फ के खाने में लिख देंगे और उसके साथ जो लफ्ज लिखा है उसको इसम के खाने में लिख देंगे।